ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا معين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔
حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج حیدرآباد لطیف آباد نمبر 12 میں پیغام محمد، ذرا محبت سے کہیں نا، بس اتنی محبت ہے آپ کو، پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آج کی اس کانفرنس میں جماعت غرباء اہل حدیث کے نائب امیر فضیلت الشیخ پروفیسر حافظ محمد سلفی حفظہ اللہ تعالی اس کانفرنس کی صدارت فرما رہے ہیں، اور شیخ انس مدنی حفظہ اللہ تعالی اسٹیج سیکریٹری کے فرائض انجام دیتے ہوئے مجھے اور آپ کو نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ کراچی سے آئے ہوئے میرے ساتھ میرے مہمان جو میرے بہنوئی بھی ہیں، حضرت مولانا شیخ نسیم صاحب حجازی آف شارجہ، حضرت بھی تشریف فرما ہیں۔ اور بہت بڑی بات کہ میرے استاد، ویسے تو یہ سب اساتذہ ہیں میرے، شیخ ابراہیم بھٹی حفظہ اللہ تعالی باوجود علالت کے، کمزوری اور نقاحت کے اتنا لمبا سفر کر کے آپ حضرات کی خدمت میں آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت، عافیت، ایمان کی دولتوں سے مالا مال فرمائے، اور تادیر ہمارے محترم کا، ہمارے ان تمام بزرگوں کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے۔ مقامی جماعت بھی جو بحمداللہ گاہے بگاہے ہمارے محترم بھائی لیاقت صاحب، محترم بھائی عمران صاحب، دیگر ان کے رفاقہ، یہ ان کی محبت ہے کہ وہ اپنی کانفرنس میں مجھے مدعو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قاری شیر محمد صاحب بھی جب اندر تشریف لا رہے تھے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ حضرت کی بھی تلاوت ہونی چاہیے۔ پہلے کئی جلسوں میں، کانفرنس میں حضرت کی تلاوت سے ہی جلسوں کا اور اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد ہوتا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آخری خطاب آپ نے بھرپور سننا ہے مولانا عبد المنان راسخ صاحب کا۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا تعلق اللہ کے پیارے حبیب کی وفات سے ہے، اور تمام احباب جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے، کوچ کرنا ہے۔ اور یہ پوری دنیا رب العالمین اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل من علیہا فان، یہ دنیا اور اس دنیا کی ایک ایک چیز فانی ہے۔ ایک ہی ذات ایسی ہے جس کو ہمیشگی ہے، جس کو دوام ہے، رب العالمین فرماتا ہے وہ ہے وَيَبْقَى
वजह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। रब के अलावा सब फानी, सब ने दुनिया छोड़ के जाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इस दुनिया और इस दुनिया की मखलूक़ात की बनावट, उसकी सजावट, उसकी तख्लीक के कुरान मजीद के अंदर तज़किरे फरमाए हैं। यकीनी इस दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है। जहां रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया की और इस दुनिया की एक एक मखलूक की तख्लीक का, इसकी आमद का, इसकी बनावट का, इसकी सजावट का जिक्र किया है, वहां रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी मखलूक़ात जो अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियां हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके फना होने के तज़किरे भी फरमाए हैं। मसलन ये जमीन रब ने बनाई, इसके क्या फायदे हैं और क्या ये जमीन हमेशा रहेगी? नहीं। ये आसमान, इसके क्या क्या फायदे हैं? क्या ये आसमान हमेशा रहेगा? नहीं। ये समंदर रब ने बनाए हैं, क्या ये हमेशा के लिए समंदर अल्लाह ने बनाए ये हमेशा रहेंगे? नहीं। यहां तक के चांद, सूरज, सितारे, ये पहाड़, ये दरख्त, ये शजर, मैंने कहा ना कि अल्लाह ने जहां इनकी तख्लीक के तज़किरे फरमाए हैं, वहां अल्लाह ने कुरान में इनके फना होने के जिक्र भी किए। और एक जगह नहीं, कई मकामात पे। इंसानों का भी रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर उसकी तख्लीक का जिक्र किया। इंसान को क्या हैसियत दी है उसके तज़किरे फरमाए, क्या शान, क्या मकाम, कितनी रिफात, कितनी बुलंदियां, और इन इंसानों में कैसे कैसे अल्लाह ने अपने बरगुजीदा और अपने मुकर्रब बंदे भेजे, किन किन को क्या शान मकाम अता फरमाए हैं, रब्बुल आलमीन ने सबके तज़किरे किए। और कैसे इस इंसान की तख्लीक हुई, और ये इंसान दुनिया छोड़ के कैसे जाएगा, रब ने यह भी जिक्र किया। यानी तख्लीक का जिक्र भी और दुनिया से जाने का जिक्र भी। कुरान मजीद की वह मशहूर और मारूफ आयत कि जो रब्बुल आलमीन फरमाता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इसका माना, इसका मफ़हूम बड़ा वादे है, कोई पोशीदा नहीं है, मख्फी नहीं है। और सच तो यह है, इस आयत का माना इतना वादे है, इतना वादे कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये है तो अरबी के तमाम अल्फाज, लेकिन 4 जुमले अल्लाह ने इसमें इस्तेमाल किए हैं, और वो चारों हमारी उर्दू में मुस्तअमल है। उर्दू में मुस्तअमल। पहला लफ्ज कुल और दूसरा नफ्स, तीसरा ज़ाइक़ा और चौथा मौत। लफ्ज कुल भी हमारे उर्दू में मुस्तअमल है। ये कुल जहान किसने बनाया? कुल का क्या माना? ये पूरा, हर एक, जिसमें सारी चीजें शामिल हैं। और नफ्स, ये भी उर्दू में मुस्तअमल है, जान। और ज़ाइक़ा, ये उर्दू में मुस्तअमल है, टेस्ट। मौत, ये सब अरबी है लेकिन उर्दू में भी मुस्तअमल।
قرآن مجید کی اگر معانی اور مفہوم پہ ہم غور و فکر کریں تو اس قرآن کو رب العزت فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، یہ قرآن اپنا معنی خود بتاتا ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جس کی موت کا وقت آتا ہے رب العالمین فرماتا ہے اللہ کے مقرر کردہ فرشتے اس کے پیغام بر جو ہے وہ دنیا میں آسمانوں سے زمین پہ آتے ہیں، اور رب کے حکم پر روح کو قبض کر کے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کی روحیں جمع ہو جاتی۔ اگر نیک اعمال مرنے والا اپنی زندگی میں کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے تو اس کے لیے بڑے بڑے اجر، ثواب، نعمتیں لا زوال رب العزت نے نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، اور اگر بد اعمالیوں میں انسان نے زندگی گزاری تو تباہی بربادی اس کا مقدر بنا دی جاتی ہے۔ اور رب العالمین فرماتا ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، انسان کی موت کا وقت جب آتا ہے تو یہ موت نہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ معصوم بچہ ہے، نہ یہ دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکپن ہے، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، یہ کمزور ہے، یہ طاقتور ہے، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ امیر ہے، یہ معمور ہے، موت نہیں دیکھتی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے رب کہتا ہے کہ اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی جاتی۔ فرشتہ رب کے حکم کا پابند ہے، اور جب انسان کی موت آتی ہے تو انسان اپنی موت آنے کے بعد جب آخرت کے اخروی سلسلے شروع ہوتے ہیں، اگر اس وقت انسان افسوس کرے یا ندامت یا شرمندگی، یہ ساری چیزیں ہائے وائے، یہ ساری چیزیں انسان کے پھر کسی کام نہیں آتی۔ بہت سارے واقعات ہیں، لوگوں نے دنیا سے جاتے جاتے جب دیکھا کہ اب تو موت ہے، اب تو کوئی چارہ نہیں، اللہ کی طرف رغبت کرنے لگے، لیکن رب نے موت کے وقت ان کے تمام تر اس ایمان کے دعوے جو کر رہے تھے یا معافی اور تلافی کر رہے تھے، رب نے فرمایا اب کسی کام کے نہیں۔ یہ زندگی اللہ نے دی ہے نا، یہ زندگی دنیا گزارنے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کمانے کے لیے اللہ نے دی۔ اس دنیا میں دنیا کے حوالے سے فائدے اٹھاؤ، لیکن اپنی زندگی میں آخرت کو مقدم رکھنا ہے۔ وہ سارے کام میں نے اور آپ نے وہ کرنے ہیں کہ جو میری آخرت، میری عاقبت اور کل قیامت کے دن میرے سارے اعمال کام آئیں۔ آج اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں وہ اعمال کریں گے اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہوگا، وگرنہ رب العالمین بدعمالیوں کا صلہ اور اس کا نتیجہ انسان کی زندگی میں بھی دکھا دیتا ہے۔ مرنا ہے، سب نے دنیا سے جانا ہے۔ قرآن میں رب العالمین نے ہر ایک کے فنا ہونے کا ذکر فرمایا، اور کس طرح اس کو فنا کیا جائے گا، اس کی اصلیت اور اس کی حیت کو ختم کیا جائے گا، رب نے قرآن میں ذکر کیا۔ انسانوں کی روح قبض کی جاتی ہے، احادیث بہت اس پر دال ہے، اور ان انسانوں میں اللہ تعالی نے مقامات عطا فرمائے ہیں۔ انبیاء اور رسول بھی اللہ نے انسانوں میں ہی اللہ اکبر پیدا کیے ہیں، انسانوں میں سے ہی اللہ نے انبیاء اور رسول کی جماعت کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اور رب العالمین نے جہاں دیگر انسانوں کی اموات کا ذکر فرمایا، وہاں پر رب العزت نے انبیاء اور رسول کی اموات کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر ہی کیا ہے۔ یہ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔
اور رب العالمین نے نبیوں کے منہ سے یہ زبان سے کہلوایا تھا نا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا، بولیں جس کا وفات النبی پہ ایمان نہیں ہے وہ خاموش رہیں، اس کے علاوہ سب کہیں گے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، بولیں، اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اگر انبیاء کو موت نہیں آنی ہوتی، انبیاء کو اللہ فوت نہیں کرتا، اگر انبیاء کی روحوں کو قبض نہ کرنا ہوتا رب العالمین نے کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے محبوب کی زبان سے رب العزت یہ جملے نہ نکلواتا۔ پیغمبر اپنی زندگی میں یہی فرماتے رہے وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا جینا اور میرا مرنا جو ہے وہ سب کا سب رب العزت کے لیے ہے۔ اور انبیاء کی زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کریں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بعثت کے تذکرے بھی رب العزت نے فرمائے ہیں، ان کی دعوتوں کے ذکر بھی رب العالمین نے کیے ہیں۔ ان انبیاء کی زندگیوں میں جو پریشانیاں آئیں، اللہ اکبر، مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، ظلم اور زیادتیاں انبیاء اور رسول اور ان کے ماننے والوں پر اللہ اکبر دنیا والوں نے کی ہے، رب العزت نے ایک ایک کی منظر کشی قرآن مجید کے اندر کی ہے، اللہ اکبر۔ اور جب انبیاء اپنا اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے جانے لگے تو رب العالمین یہ بھی فرماتا ہے وہ دنیا سے گئے ہیں، کس طرح گئے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ نبیوں بانی ہی رب العزت نے ان کی امت کے لوگوں میں کہلوا دیا کہ ہم نے کس طرح اس دنیا کو چھوڑ کے جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں نا، اور اللہ کے خلیل ہے، اور رب العالمین سے اللہ کے اس پیغمبر خلیل نے دعا کی تھی، اور اللہ رب العزت نے اپنے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے، اور حضرت ابراہیم کی اولاد کون ہے؟ بیٹے حضرت اسماعیل۔ یہ تو سب کو یاد ہوں گے نا، قربانی کرتے ہیں آپ، نمازیں پڑھے نہ پڑھے لیکن قربانیاں تو ہوتی ہیں۔ اذانیں ہونے کے بعد یہ پتا چلے نہ چلے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، لیکن بقرعید پہ پتا لگتا ہے کہ جانور جو ہے ان کے گھروں پہ دروازوں پہ بندے ہوئے ہیں، شاید یہ مسلمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ اور حضرت یعقوب کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، ٹھیک ہے نا؟ اور حضرت اسحاق کے بیٹے۔ غلطی کرو تو بتا دے، صرف بعد میں نہیں کہیں کہ آپ نے غلطی کی۔ اللہ جزائے خیر دے، میرے شیخ اصلاح فرماتے رہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت کا ذکر، آپ کی وفات کا ذکر رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا ذکر بھی رب العزت نے قرآن میں کیا۔ اور وہ کس انداز سے اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل گئے، اللہ کے پیغمبر گئے۔ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، انتہائی اللہ کے برگزیدہ ہیں، اور جناب یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، جناب اسماعیل، جناب اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اگر تیسرا کوئی بیٹا ہے تو مجھے بتاؤ۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں دیگر بیٹے ضرور ہیں، لیکن حضرت یعقوب کے بیٹوں میں ایک جناب یوسف علیہ السلام ہیں۔ اگر ان تینوں کو دیکھا جائے، جناب ابراہیم کے بیٹوں میں اسماعیل ہیں، وہ
بھی پیغمبر گئے، حضرت اسحاق گئے وہ بھی پیغمبر گئے، جناب یعقوب کے بیٹوں میں جناب یوسف گئے ان کو بھی رب العالمین نے پیغمبر بنایا گئے۔ اور رب قرآن میں کہتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ جناب ابراہیم اور جناب یعقوب اپنے بچوں کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ اے میرے بچوں، اے میرے پیارے پیارے بیٹوں، رب العالمین نے اس دین کو تمہارے لیے پسند فرمایا گئے۔ اللہ اکبر۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ۔ یاد رکھو رب نے اس دین کو میرے بیٹوں تمہارے لیے رب نے پسند کیا گئے، لیکن یاد رکھو فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ خیال کرنا اے میرے بیٹے اسماعیل، اے میرے بیٹے اسحاق، اللہ نے چونکہ اس دین کو تمہارے لیے چنا ہے، پسند کیا ہے، اپنی زندگیوں میں اس دین سے چمٹ جانا، اس دین کے مطابق عملی زندگی گزارنی ہے، دین کے مطابق زندگی کے سارے لمحے تم نے گزارنے ہیں۔ اور کس انداز میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم کہتے ہیں اسماعیل اسحاق موت تو آنی ہے، لیکن یاد رکھو اس وقت تک تمہاری موت نہیں آنی چاہیے کہ جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کے مطیع فرما بردار نہ بن جاؤ۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ جی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو یہ وصیت کی تھی وہ اپنے ان بیٹوں کو کی تھی کہ جو اللہ نے جن کو پیغمبر نہیں بنایا تھا، حضرت یوسف کے علاوہ دیگر بیٹے تھے، اور بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل اور اسحاق کے علاوہ کوئی بیٹے؟ اور دونوں پیغمبر ہیں، دونوں اللہ کے برگزیدہ ہے، اور باپ بچوں کو وصیت کر رہا ہے بیٹا دیکھو مرنا تو ہے لیکن اس وقت تمہاری موت آئے جب تم متی بن جاؤ۔ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کو بھی واضح فرما دیا، جناب یعقوب کون ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ ہے، اللہ کے لاڈلے اور پیارے نبی ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کس وقت اپنے بچوں کو نصیحتیں کیا کر رہے ہیں؟ رب کہتا ہے ما تعبدون من بعدی۔ یعقوب کہتے ہیں اے میرے بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ اکبر۔ بچے کہتے ہیں اے ابو جان آپ کی نہیں بلکہ آپ کے الہ کی، آپ کے باپ ابراہیم اسماعیل اور جناب یعقوب جناب اسحاق کے اللہ اکبر الہ کی ہم عبادت کریں گے۔ بعدی کے لفظ رب العزت نے استعمال کیے، لیکن اللہ اکبر یعقوب کس طرح دنیا سے جا رہے ہیں؟ یعقوب چلے جائیں گے، بعد کے لفظ استعمال کرنے سے پہلے رب العالمین نے یہ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ حضرہ عربی میں کہتے ہیں نا جی حاضر، حضور، حاضر کے معنی میں ہے نا اذ حضر یعقوب الموت۔
रब कहता है कि जब याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में उनकी मौत का वक्त आया तो वो अपने बच्चों से पूछते हैं, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे प्यारे बेटो, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? यकीनी रब्बुल आलमीन ने हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक की मौत का जिक्र फरमाया, हजरत यूसुफ की मौत का जिक्र फरमाया, और यहां पर रब्बुल इज्जत ने हजरत याकूब की मौत का जिक्र किया। इज़ हदरा याकूबल मौत। आज लोग अंबिया की अमवात का इनकार करते हैं कि जी नबियों को मौत नहीं आती। शायद ये लफ्ज आपको बड़ा सकील लग रहा होगा और लोग कहेंगे कि देखो तौबा तौबा, नबियों के बारे में ये जालिम वहाबी कह रहा है कि जी नबियों को मौत आती है। और खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम है, ये हम नहीं कह रहे बल्कि हमारा अल्लाह कह रहा है। आपको कुरान से दूर रखा जाता है, दीन से दूर रखा जाता है। आपकी जबान में मौत कहां इस्तेमाल होता है? किसी के पर्दा कर जाने पर, किसी के छुप जाने पर, किसी के विसाल करने पर, किसी के इंतकाल करने पर, मुंतकिल हो जाने पर लफ्ज़ मौत जब आता है, खुदा की कसम विसाल और इंतकाल सब के सब लफ्ज पीछे रह जाते हैं। मौत इस बात पर दलालत करती है कि अल्लाह अकबर, रब के निजाम को, रब के अमर को गालिब किया गया है, और जब रब का हुक्म किसी पर आता है फिर लम्हे भर की ताखीर नहीं होती। मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बेटो, मेरे लाडलो, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? मा तअबुदून मिन बादी कालू नअबुदु, कहते हैं अब्बू जान फिक्र ना करें, सारी जिंदगी आप जिसकी तालीम देते रहे, जो सिखाते रहे, माबूद की मारिफत और पहचान करवाते रहे, अल्लाह की कसम उस रब के अलावा किसी, उस इलाह के अलावा किसी और के आगे हमारी जमीन नहीं झुकेगी। जो आपके वालिद इब्राहिम का भी इलाह है, इस्माइल का भी इलाह है, इसहाक का भी इलाह है, अब्बू जी जो आपका इलाह है हम उसी की इबादत करेंगे। अगर आगे चल के हम देखते हैं, यहां पर तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का रब्बुल इज्जत ने जिक्र किया ना, अल्लाह एक और मकाम पे 16वें सिपारे और सूरह मरियम के अंदर आप पढ़ के देखें। सूरह मरियम की तिलावत कीजिए। फरमाया वसलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। रब्बुल आलमीन अल्लाहु अकबर। हजरत ज़करिया बूढ़े हो गए, उनके घर में औलाद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगते मांगते जिंदगी गुजर गई। अल्लाहु अकबर। सर के बाल, मेरी तरफ, सर के बाल सफेद हो गए और अल्लाह से कहते हैं इज़नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा। रब्बुल आलमीन से जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम इल्तिजाएं कर रहे गए, अल्लाह अपने खजानों से मिला, मेरा वली वारिस अता फरमा दे। अल्लाह मेरी हड्डियों में गूदा खत्म हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए हैं। या इलाहुल आलमीन मेरी बीवी भी भांज गए, सारे असबाब मुनक़ते हो गए, लेकिन अल्लाह तेरी रहमत बड़ी वसी है, मैं तेरी रहमत का वास्ता देता हूं, अपने खजानों में से मेरा वली वारिस तो फरमा दे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ हमारे लाडले ज़करिया, ऐ हमारे प्यारे ज़करिया, अल्लाहु अकबर, हम तुझे बेटा ही अता नहीं करेंगे बल्कि उस बेटे का नाम भी आसमानों से रख के अल्लाहु अकबर तुझे देंगे, और ऐसा नाम रखेंगे कि अल्लाहु अकबर पूरी दुनिया में आज तक उस नाम पर नाम रखा ही नहीं गया है। यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया। ऐ ज़करिया, उस नाम पर किसी का आज तक नाम ही रखा नहीं गया। रब ने ज़करिया को बेटा भी अता किया। किसके घर पैदा हुए? हजरत ज़करिया के घर पैदा हुए। अल्लाहु अकबर, सारे असबाब मुनक़ते हो गए, लेकिन अल्लाह की रहमत की उम्मीद लगाए हुए हैं। रब्बुल इज्जत ने औलाद
औलाद की दौलत से माला माल किया, लेकिन हजरत याह्या की ज़बानी रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहलवाया, वसलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूत। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह उन्हीं की जबान से कहलवाता है, अल्लाह कह रहा है, बल्कि अल्लाह कह रहा है हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के बारे में कि वसलामुन अलैहि यौमा वुलिदा, अल्लाह की सलामतियां ही सलामतियां है हजरत याह्या पर। किस दिन? अल्लाह कहता है मेरी सलामतियां ही सलामतियां है। किस पर? हजरत याह्या पर। किस दिन? जिस दिन हजरत याह्या पैदा हुए, और अल्लाह कहता है वयौम यमूतु, जिस दिन हजरत याह्या को फौत किया जाएगा, और वयौम युबअसु हय्या, और जिस दिन अल्लाह अकबर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाएंगे, क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में उठाए। कहा जिस दिन याह्या पैदा हुए उस दिन भी रब की सलामतियों में थे, और जिस दिन इनको मौत आएगी उस दिन भी रब की सलामतियों में है, और जब कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में दोबारा खड़े होंगे, जिंदा किए जाएंगे, तब भी अल्लाह की सलामतियों में होंगे। ये कुरान है, और रब ने हजरत याह्या के बारे में लफ्ज़ मौत को इस्तेमाल किया। आज लोग अंबिया के इंतकाल, अल्लाह अकबर, और उनके फौत होने का इनकार करते, यहां तक कि लोग इतना तजावुज कर चुके हैं। अंबिया तो अंबिया, अंबिया के बाद आने वाले नेक लोग, सुलहा, शुहदा, इन तमाम की अमवात का और उनकी रूहों को कब्ज हो जाने का इनकार करते। अल्लाह फरमाता है जब नबियों को मौत आनी है तो तुम क्या चीज हो? अपनी आखिरत और अपनी आकिबत की फिक्र करो। जनाब याह्या अलैहिस्सलाम के बारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया वसलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। आगे अगर कुरान की इसी सूरत की तिलावत करते गए तो रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, और जनाब ईसा की अपनी ज़बानी रब्बुल इज़्ज़त ने कहलवाया। उस मामूली सी उम्र, नन्ही उम्र में जनाब ईसा कहते गए, जब उनकी मां पर लोग इल्जाम लगाते गए तेरा बाप भी नेक था, अल्लाह अकबर, तेरा फलां भी नेक था, तेरी मां भी अच्छी थी, तुझे क्या हो गया? तूने अपना मुंह क्यों काला करा लिया है? अल्लाह अकबर। रब्बुल आलमीन की हिदायत के मुताबिक हजरत ईसा की मां खामोश हो जाती गए, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे की तरफ इशारा करती गए। अल्लाह अकबर। रब उस मामूली, उस छोटे मासूम बच्चे को मामूली उम्र में कुव्वत गोयाई अता फरमाता है। कौन है? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम है। लोग कहते हैं ए माई क्यों मजाक करती है, ये मासूम बच्चा कैसे बोलेगा? वो बस इशारा करती है, बोलेगा, इसलिए बोलेगा मेरे रब का हुक्म है। अल्लाह अकबर। फिर जनाब ईसा बोल पड़ते हैं, फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा वजालनी नबिया वजालनी मुबारकल ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाह। रब्बुल आलमीन ने कुरान में वह पूरी मंदर कशी फरमाई। आगे पढ़ते पढ़ते देखे जनाब ईसा की ज़बानी रब्बुल इज़्ज़त ने क्या जुमले कहलवाए। यहां तो जनाब ईसा की विलादत के रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरे किए, किसके हाथ कैसे पैदा हुई। रब ने पैदा होने के बाद कहलवाया मैं अल्लाह का बंदा हूं, रब ने मुझे अल्लाह अकबर किताब अता की है, रब ने क्या क्या मुझ मेरे जरिए नसीहतें और वसीयतें करने का हुक्म। आगे जाके कहते हैं वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। ऐ दुनिया वालों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, यूं कहिए रब ने वो जनाब ईसा की ज़बानी जो पैगाम था उम्मत मुहम्मदिया में कुरान की सूरत में ऐलान कर दिया गया। और हजरत ईसा कहते हैं वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु
वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। ऐ मेरी कौम के लोगो, रब ने मुझे पैदा किया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, लेकिन सुन लो, जिस दिन अल्लाह ने मुझे पैदा किया है उस दिन भी रब की सलामतियों में मैं पैदा हुआ, और जिस दिन मुझे ईसा की मौत आएगी उस दिन भी मुझ पर अल्लाह की सलामतियां होंगी। उस दिन भी अल्लाह की मुझे ईसा पर सलामतियां होंगी। वयौमा उबअसु हय्या, अगर इसका माना कुछ और निकलता है तो जाइए अपने अपने डिक्शनरियों में उठा के देख लीजिए, अपने अपने छापों में कुरान मजीद के इस तर्जुमे को उठा के देखे। हजरत ईसा के हवाले से रब्बुल इज्जत ने जो कहलवाया है, क्या कहलवाया हजरत ईसा की जबानी, और उसका माना क्या बनता है। फरमाया वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु, जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन भी अल्लाह की सलामतियों में था मैं, और जिस दिन मेरा इंतकाल यानी मेरी वफात होगी, यानी मुझ पर जब मौत वाक़े होगी उस दिन भी अल्लाह की सलामतियां। और कल क़यामत के दिन ईसा कहते हैं जब अल्लाह मुझे खड़ा करेगा तो उस दिन भी रब की सलामतियों में होगा, उस दिन भी रब की सलामती। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मौत का जिक्र रब्बुल इज्जत ने कुरान में किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, अल्लाह अकबर, आपने सुना है ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद भी मौत का फरिश्ता आया था या नहीं आया था, और क्या कहा था उसने। हां, रब्बुल आलमीन ने दीगर लोगों और अंबिया की अमवात में जो फर्क रखा है, शेख कह रहे हैं टाइम खत्म हो गया लेकिन मौजू तकरीबन 25 मिनट और चलेगा। हाँ, रब्बुल आलमीन मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत को भेजता है। मलकुल मौत ही आया था ना। अंबिया और दीगर लोगों की अमवात में फर्क यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अंबिया की जब मौत का वक्त आता है, आम लोगों की जब मौत का वक्त आता है ना तो फरिश्ता बगैर बताए रूह को कब्ज कर लेता है, लेकिन अंबिया की शान यह है कि हजरत आयशा फरमाती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने कई मरतबा सुना कि पैगंबर फरमाते थे कि अंबिया की जब मौत आती है तो फरिश्ता आता है रब की तरफ से और इजाजत लेता है। अल्लाह ने आपको 2 इख्तियार दिए हैं, अगर आप दुनिया में रहना चाहते हैं तो आप दुनिया में अभी रहे, और अगर रब की मुलाकात को पसंद करना चाहते हैं तो अल्लाह की तरफ से मैं आपको लेने के लिए आया हूं। और यकीनी अंबिया ने हमेशा दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत से मोहब्बत नहीं की, जब बुलावा आया है तो अंबिया ने अपने आप को पेश कर दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी आया था और आकर कहा कि हजरत आपका वक्त पूरा हो गया, अगर आपको और मुझे पता लगे ना फलां जगह मौत मेरी है तो यकीनी आप और हम वहां जाते नहीं हैं, डरते हैं, घबराते हैं। मौत से इंसान को डर लगता है। माए भी कहती हैं बेटा वहां ना जाना, खतरा है, ऐसा ना हो मेरा लाडला और मेरा जिगर जो है मुझसे जुदा हो जाए। बच्चा खुद भी डरता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जब मलकुल मौत आया और कहता है हजरत मैं अल्लाह की तरफ से आया हूं और अल्लाह ने हुक्म यह किया मुझे, मैं आपसे इजाजत लूं, आपकी मौत का वक्त आया, अगर आप इजाजत दें तो आपकी रूह को कब्ज करें। मूसा अलैहिस्सलाम जलाली तो ऐसे तमाचा उठाया और सीधा मलकुल मौत के मुंह पे रसीद कर दिया, आंख निकल गई, अल्लाह के पास चले गए। मूसा का तमाचा फरिश्ते के मुंह पे पड़ने का यह मकसद था कि मैं मरना नहीं चाहता। चला गया फरिश्ता और अल्लाह से जाके कहता है कि अल्लाह तेरे पैगंबर, तेरे अल्लाह अकबर कलीम ने मेरा यह हाल बना दिया। रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अल्लाहु अकबर है, मेरे फरिश्ते दोबारा मेरे कलीम के पास जाओ, मूसा के पास जाओ और जाकर कहो कि रब्बुल आलमीन ने मुझे दोबारा भेजा है और ये कहकर भेजा है किसी भी जानवर बछड़े की कमर पर अपने हाथ को रखिए, आपके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे हर बाल के बदले रब्बुल आलमीन आपको एक एक बाल के बदले 1
साल की उम्र अता फरमाएगा। ये अल्लाह अकबर हजारों नहीं, हजारों, सैकड़ों नहीं, हजारों साल की उम्र बन रही थी। हजरत मूसा ने जब सारी बात सुनी, ये तो फिर आ गया। जब पैगाम सुनते गए रब्बुल आलमीन का, तो कहते गए अल्लाह ये बता, मेरे हाथ के नीचे आने वाले तमाम बालों के बदले में एक एक साल की तू मुझे उम्र अता फरमाएगा। जब वो सारे सैकड़ों हजारों साल गुजर जाएंगे तो फिर क्या होगा? रब की तरफ से अल्लाह अकबर ये पैगाम मिला, ऐ मेरे कलीम, जो आज फरिश्ता करने के लिए आ गया है वो कल भी होना है। जो आज करने आया है फरिश्ता वो कल भी होना है। और मूसा फिर कहते हैं अल्लाह जब कल भी होना है तो फिर दुनिया किसी काम की नहीं है, मुझे बुला ले अपने पास, मैं तेरी मुलाकात को पसंद करता हूं। यह है मूसा। कुरान मजीद को अगर हम पढ़ के देखें, रब्बुल आलमीन ने अंबिया के सरदार इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे एक जगह नहीं, कुरान के अंदर कई जगह रब्बुल इज्जत ने जिक्र किया है और पैगंबर अलैहिस्सलाम की वफात के तज़किरे किए हैं। अगर मैं झूठ बोलूं, गलत बयानी करूं, अल्लाह अकबर, जो चोर की सदा है वो मेरी सदा है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, सूरह ज़ुमर उठा के, रब्बुल आलमीन ने अपने नबी से खिताब किया है। यह नबी की गुस्ताखी नहीं है। नबी आए ही रब की तौहीद को बुलंद करने के लिए, और यह अल्लाह की तौहीद का तकादा है कि कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। यह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का तकादा है। रब सबको मार देगा, अगर बाकी रहेगा तो अकेला अल्लाह। कुल हुवल्लाहु अहद लम यल अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। एक ही है जिसको बता, कोई और दुनिया में नहीं रहेगा। कुरान कहता है इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंद रब्बिकुम तख्तसिमून। रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के दुनिया के जाने के हवाले से अपने नबी से खिताब किया। हम दुनिया में कहते हैं ना कि फलां जगह मैयत हो गई है, कहते नहीं कहते? फलां फौत हो गया है, फलां की मैयत हो गई है। लफ्ज मैयत कहां इस्तेमाल होता है? बोले मौत पे ना, जब फौत हो जाता है, जब रूह को कब्ज किया जाता है। रब्बुल आलमीन ने अपने नबी से खिताब किया इन्नका मय्यतुन, ऐ हमारे प्यारे नबी, आपका इंतकाल होने वाला है, आप फौत होने वाले हैं। और लफ्ज मैयत मेरे आपकी उर्दू में मुस्तअमल है। और लोग कहें कि यह गुस्ताखी नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अंबिया का दुनिया से चला जाना, नबियों का फौत हो जाना उनकी उम्मतों के लिए बाइसे रहमत होता है। किसने फरमाया ये? अल्लाह के महबूब ने, कि नबियों का उनकी उम्मतों की मौजूदगी में फौत हो जाना जो है उन उम्मतों के लिए रहमत का सबब बनता है। इसलिए कि नबियों की उम्मतों ने नबियों का इतना दिल दुखाया होता है, अल्लाह इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह अकबर, उम्मत जो है वो नाफरमानियों में, अल्लाह की नाराजगी वाले कामों में, नबियों की बगावतों में जिंदगी गुजारती है। अल्लाह इस चीज को पसंद नहीं करता। नबियों की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए उनकी उम्मतों को नबियों के सामने तबाह बर्बाद कर देता, हलाक कर देता है। ये उम्मत के लिए नबी का फौत हो जाना जो बाइस रहमत, इसलिए कि अगर नबी हमेशा रहे तो अल्लाह उनकी उम्मतों को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो नाफरमान है, अल्लाह की बागी है और नबियों की नाफरमानी करने वाली है। ये नबियों की दुनिया से जाना उम्मत के लिए बाइस रहमत है। फरमाया इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंद रब्बिकुम तख्तसिमून। आयत ऐसे ही है हाफिज इस्माइल साहब। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में अपने नबी के फौत हो जाने का
अल्लाह के नबी की मैयत के तज़किरे फरमाए गए। यूं कह दीजिए मैयत शरीफ के रब्बुल इज्जत ने तज़किरे फरमाए गए। रब्बुल आलमीन ने अपने नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल के बारे में आपने सुना है कि सफर के महीने में अल्लाह के नबी कब्रिस्तान में किसी की तदफीन के लिए गए। अल्लाह के महबूब वापस आ रहे थे, कायनात के इमाम को बुखार चढ़ गया, आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है। अल्लाह के नबी की आहिस्ता आहिस्ता हलालत बढ़ रही है, कमजोरियां बढ़ रही है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम कई दिन बीमारी की हालत में लोगों की इमामत करवाते रहे। आखिरी अय्याम आए, अल्लाह के नबी की बीमारी, अल्लाह के नबी की हलालत बढ़ती जा रही है। कायनात के इमाम फरमाते हैं मुरू अबा बकर, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी बीवियों, ऐ आयशा, जा अबू बकर से कहो कि वो लोगों की इमामत करवाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इतनी हिम्मत नहीं कि अल्लाह के नबी मस्जिद में जाके लोगों की इमामत करवा सके। गागे बगागे, चूंकि रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी नबी को अपनी उम्मत के लिए हरीस बनाया है। कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को हरीस बनाया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से जाते जाते मस्जिद में आने की हिम्मत नहीं है, इमामत करवाने की सकत नहीं है। कमजोरी, अलालत और बीमारी अल्लाह के नबी की अल्लाहु अकबर बतदरीज बढ़ती जा रही है। हजरत आयशा फरमाती है मैंने औरों को भी दुनिया से जाते हुए देखा, लेकिन अल्लाह की कसम जितनी तकलीफ दुनिया से जाने के वक्त अल्लाह के नबी कायनात के इमाम को पहुंची है, जितनी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दुनिया से जाते हुए तकलीफ, हलालत और तकलीफ पहुंची है, मैंने दुनिया में इतनी तकलीफ किसी को नहीं देखी, किसी में इतनी तकलीफें नहीं देखी। आप कहें अल्लाहु अकबर, नबी और तकलीफ। अल्लाह के नबी का सहाबी कहता है अल्लाह के महबूब आपको तो बुखार हो रहा है। पैगंबर ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी जी मुझे बुखार है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी उम्मत दीगर लोगों के मुकाबले पर मुझ नबी को डबल बुखार चढ़ता है, दोहरी तकलीफ, डबल तकलीफ पहुंचती है। सहाबी कहता है अल्लाह के नबी डबल बुखार, डबल तकलीफ अगर पहुंचती है तो अल्लाह उस तकलीफ के बदले अजर भी तो आपको डबल अता फरमाता है। अल्लाह के नबी उस बुखार की हालत में मुस्कुरा के फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबी तू ठीक कह रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी की इतनी तकलीफ। कायनात के इमाम इस मौके पर भी अपने सहाबा और अपनी उम्मत को नसीहतें फरमा रहे हैं, अकीदे का दर्स दे रहे हैं, लोगों को नसीहतें और वसीयतें फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस मौके पर अल्लाह यहूद और नसारा पर लानत फरमा, इसलिए कि उन यहूद और नसारा ने नबियों अपने नबियों के जाने के बाद उनकी कब्रों को सजदागाह बना लिया था। अल्लाह तू मेरी कब्र की हिफाजत फरमा। गागे बगागे अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला ततरुनी कमा अतरतिन नसारा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों मुझे इतना और उस तरह ना चढ़ाना जिस तरह नसारा ने अपने नबियों को चढ़ाया था। गुलू नहीं करना, तजावुज नहीं करना। अल्लाह के नबी वसीयतें और नसीहतें फरमा रहे हैं और उन नसीहतों के अंदर अल्लाह के नबी दुनिया से जाते जाते लोगों को ये वसीयत फरमाते हैं अस्सला अस्सला अस्सला
लोगों अल्लाह अकबर, नमाज नहीं छोड़नी, नमाज का क़याम करना गए, नमाजों की पाबंदी करनी गए। वमा मलकत ऐमानुकुम, अपने ज़ेरे साए ज़ेरे निगरानी गुलामों की, नौकरों की, चाकरों के हवाले से उनकी इज्जत करनी है, उनका ख्याल रखना है। हक़ तलफिया ना हो, ये अल्लाह के नबी वसीयतें नसीहतें कर रहे हैं। आखिरी वक्त है, अल्लाह के नबी ने जनाबे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर को देखा, हाथ में मिसवाक पकड़ी हुई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बीवी मेरी और आपकी मां अम्मा आयशा फरमाती है, ऐ अल्लाह के नबी शायद आपको मिसवाक की हाजत हो रही है। अल्लाह के नबी फरमाते जी जी। आयशा कहती है अल्लाह के नबी के लिए मिसवाक लाओ। अल्लाह के नबी के लिए मिसवाक को अपने मुंह में दांतों में चबाती है, बुर्श बनाती है और अल्लाह के नबी के दस्ते मुबारक में थमा देती है। अल्लाह के नबी उस अलालत में आहिस्ता आहिस्ता अपने दांतों पर मिसवाक फेर रखे गए। मिसवाक से अल्लाह के नबी फारिग हुए। कायनात के इमाम की कैफियत ये, करीब प्याला रखा हुआ है, अल्लाह के नबी उस प्याले में अपने हाथों को पानी में डुबोते गए, अपने चेहरे अपने जिस्म पे मल रखे गए और अल्लाह के नबी की ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह, कायनात के इमाम की ज़बान पर ये जुमले आए, ऐ दुनिया वालों अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं। पैगंबर के लब मुबारक आहिस्ता आहिस्ता गिल रहे गए। ये अल्लाह के नबी की आखिरी कैफियत है, आखिरी कंडीशन है। लेकिन उससे कबल हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अली मैंने बनु अब्दुल मुत्तलिब के लोगों को दुनिया से जाते हुए देखा है, उनके चेहरों का मुझे बखूबी अंदाजा है। मैंने उनके चेहरों को भी मैंने देखा दुनिया से जाते वक्त, और आज मैं अल्लाह के नबी के चेहरे को भी देख रहा हूं। अली अल्लाह की कसम मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह के नबी अब दुनिया में नहीं रहेंगे, बल्कि अल्लाह के नबी का वक्त पूरा हो चुका है। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में नहीं रहेंगे। अली कौन कहने वाले हैं? हजरत अब्बास। आज जो लोग अपने अलम पर हजरत अब्बास का नाम लिखते हैं, बड़े फख्र से लिखते हैं, उसी अब्बास ने कहा था रज़ी अल्लाहु अन्हु, अली अब मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह के नबी दुनिया में नहीं रहेंगे। मैंने बनु अब्दुल मुत्तलिब के लोगों को दुनिया से जाते हुए उनके चेहरों का बगौर जायजा लिया है। अल्लाह अकबर। वही चेहरा वही कैफियत आज मुझे मोहम्मद मुस्तफा की नजर आ रही है। अब अल्लाह के रसूल दुनिया में नहीं रहेंगे। और फिर यही हुआ, अल्लाह के नबी अपनी जबान से फरमाते, हजरत आयशा करीब बैठी है, वो कहती है मैं अल्लाह के नबी के जबान से होठों से निकलने वाले जुमलों को सुन न सकी। हाँ, पता था कि अल्लाह के नबी कुछ इरशाद फरमा रहे हैं और अल्लाह के नबी की ज़बान पर ये जुमले थे। अल्लाह के नबी फरमाते मअल्लज़ीन अनअमत अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन, अल्लाहु अकबर, वश्शुहदा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वअल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, बिर्रफ़ीक़िल आला, बिर्रफ़ीक़िल आला। बस पैगंबर ने ये जुमले 3 मरतबा फरमाए। आपकी उंगली आसमान और छत की तरफ उठी हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ, आपके जिस्म मुबारक की तरफ आई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान क्या कहता है? फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़ा इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फलन यदुर्रल्लाह शैआ। रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी के दुनिया से जाने का ऐलान आपकी जिंदगी ही में कुरान में करवा दिया था। अल्लाह के नबी वफात पा गए, आपका इंतकाल हो गया। अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल
इज्जत ने आपकी रूह को कब्ज कर लिया। आपकी मोहब्बत में उमर एक मर्तबा जलाली हुए थे। अगर कोई कहेगा कि अल्लाह के नबी वफात पा गए हैं, मैं उसके 2 टुकड़े कर दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए और उन्होंने तारीख साथ जुमला इरशाद फरमाया, अबू बकर अपनी बातें कह रहे, उमर फारूक अपनी बातें कह रहे हैं और अबू बकर कहते हैं, ए उमर खामोश जाओ, मेरी तो सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन उमर खामोश नहीं हो रहे। अबू बकर फिर अल्लाहु अकबर अपना खिताब शुरू कर देते गए। फरमाया, मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात, मन काना याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। कुरान ने भी तो यही कहा है, वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हजरत अबू बकर कहते हैं, ऐ नबी के सहाबा, ऐ दुनिया वालों, जो भी मोहम्मद मुस्तफा की इबादत किया करता था वो सुन ले, अल्लाहु अकबर, मोहम्मद अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। आज वही लोग इनकार करते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वफात का कि जिन्होंने अल्लाह के मुकाबले पर मोहम्मद मुस्तफा को अपना माबूद बनाया हुआ है। हालांकि या अल्लाह मदद कहना चाहिए ना, लोग या रसूल अल्लाह मदद, या अली मदद, या फला। जब इंसान अल्लाह को छोड़कर गैरों की परस्तिश करता है, अल्लाह भी उसे उसके हाल पे छोड़ देता है। मन काना याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युल ला यमूत, जो अल्लाह की इबादत करता है वो सुन ले, अल्लाह कौन है? हई है, और अल्लाह को मौत नहीं आती। कुरान की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। सहाबा कहते हैं, ऐसा लगता था पहले हमने ये आयत अल्लाह के नबी की जबान से कई मरतबा सुनी, लेकिन जब अबू बकर ने आज नबी की वफात के बाद हमें पढ़ के सुनाई, अल्लाह की कसम ऐसा लगता था कि जैसे आज ही ये आयत नाजिल हुई है, आज ही नाजिल। और मदीना की गलियों में ये आयत सहाबा की जबानों पर थी। पूरा मदीना जो है इस आयत से गूंज रहा था कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन